Morning everyone. Today's next topic is potential energy. So, what is potential energy? The energy possessed by a body by virtue of its position, okay, or configuration is called potential energy. Potential energy is also termed as the energy of configuration or mutual energy. It is measured by the amount of work that the body can do in passing from its present position or configuration to some standard position or configuration, known as zero position or zero configuration. Okay, for an example, potential energy due to position, and the example is a lifted weight as it can do work when it falls down under gravity. Similarly, the second one, the water stored in reservoir, okay, रिजर्वियर में जो वाटर स्टोर होता है उसमें क्या होती है, खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस. ओके, नाउ द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन. Okay, for just like a coiled spring in case of a watch or a gramophone. Okay, when a coiled spring uncoils, it does work by rotating the hands of the clock or the gramophone disc. Similarly, the compressed gas in a cylinder, when the compressed gas changes its configuration, it does work. Similarly, a stretched bow, when the bow is released, it is able to shoot the arrow with a large velocity. All of these example of the potential energy. Okay, so there are so many types of potential energy. For an example, gravitational potential energy, first one. Second one, elastic potential energy. Electrostatic potential energy. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो सपोज दैट ये आपका एक ग्राउंड है जिस पर एक बॉडी है जिसका मास m है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी बॉडी को लेके जाने में जो हम वर्क करते हैं वो वर्क इस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. उसी वर्क को, उसी एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. जैसे ये बॉडी ग्राउंड पे है तो इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ज़ीरो है. ठीक है, अब इस बॉडी का वेट कहाँ पे लग रहा है? डाउनवर्ड, mg. अगर आप इस बॉडी को लिफ्ट करना चाहते हैं अपवर्ड, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, जिस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इसके वेट के इक्वल होगी. ठीक है, तो अब अगर आप इस बॉडी को एक स्मॉल डिस्टेंस dy शिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करते हैं, सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ऑन द बॉडी इन मूविंग इट थ्रू अ डिस्टेंस dy is very small and it is represented by dw, and the formula is F into dy. The value of F, which is equal to mg, कम से कम आपको इस वेट के इक्वल फोर्स अप्लाई करना होगा तभी ये बॉडी अप जाएगी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज dy. Okay, now if the total work done is W in moving the body through a vertical distance h, सपोज करो आपको यहाँ तक लेके आना है और ये टोटल हाइट ग्राउंड से h है. So the total work done is W, which is equal to the part dw integration by the limit, lower limit 0 and the upper limit height h, and the value of dw is mg dy. Okay,
m and g are constant, so take outside. Integrate 1 with respect to y, then we get mg y and lower limit 0, upper limit h. Now replace y by the upper limit, then we get h, and by the lower limit, then we get 0, and now subtract both of them. So finally we got mgh. So this is the total work. Okay, and this total work is stored in the form of potential energy. So expression of potential energy, gravitational potential energy is mgh. ठीक है, ओके यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम आप सेम लगाएंगे. तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? सिंपल, work done by the external agent is equal to change in potential energy. It means final potential energy minus initial potential energy. आप potential energy को U से शो कर रहे हैं यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे U से लिख दे रहा हूँ. तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी है. तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. What is इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए आपको पहले एक स्प्रिंग का केस देखना होगा. तो एक पॉइंट आप पे आता है जिसे हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ. तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए. हुक्स लॉ को क्या करना है ज़रा ध्यान से देखेंगे. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी. सपोज़ करिए ये एक स्प्रिंग मैंने एक वॉल से अटैच करी हुई है और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच किया हुआ है और ये ब्लॉक इस टेबल पे रखा है. ब्लॉक का मास m. अगर आप इस ब्लॉक को राइट हैंड साइड स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग स्ट्रेच करते हैं, तो ब्लॉक जो था कितने डिस्टेंस आपका डिस्प्लेस हो गया? ब्लॉक सपोज कर लीजिए x डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया. ये फोर्स आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया था. सो आप बताइए यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. व्हाट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? देखिए ये ब्लॉक की मीन पोजीशन है. जब आप इसे राइट शिफ्ट करेंगे तो स्प्रिंग में एक इंटरनल टेंडेंसी जनरेट होगी जो इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को मीन पोजीशन के टूवर्ड्स लाएगी. और जब ये ब्लॉक इस साइड आ जाएगा, यानी स्प्रिंग आपकी क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी. जब आप इसे रिलीज़ करेंगे तो जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो उस कंडीशन पे ब्लॉक पर एक इंटरनल फोर्स अप्लाई होगा जो उसे इसकी मीन पोजीशन पे लाएगा. तो दिस इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? F एक्सटर्नल के इक्वल होगा. तो हुक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हुक कहते हैं वो हुक लॉ के अकॉर्डिंग द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन. सो व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ proportion, then we put a constant k, and this constant is called Hooke's constant और स्प्रिंग कांस्टेंट. तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए ये कांस्टेंट अलग अलग होता है आपका. ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप स्ट्रेच करेंगे आप अगर ज़्यादा स्ट्रेच कर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेगा, सो रीस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट हैंड साइड है और आप इसे राइट हैंड साइड लेके जाना चाहते हैं तो F एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स. सो द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस kx. ये वैल्यू मैंने यहाँ से रिप्लेस कर ली, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी kx. ठीक है, अब इस वैल्यू के आप यहाँ पे क्या करेंगे? वर्क डन फाइंड करेंगे. तो सपोज़ करिए इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 था,
फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, x हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, ये कैसा होगा, वेरिएबल। तो आप यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है, इसलिए आप एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस dx से रिलेट करेंगे। तो एक dx डिस्टेंस अगर आप बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूव कराते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू dx। यहाँ पर F एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, और F एक्सटर्नल कितना था, F एक्सटर्नल की वैल्यू थी kx, ओके, एंड इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से आपने dx डिस्टेंस मूव कराई थी, ठीक है, और टोटल फाइनल डिस्टेंस कितनी लानी है, मान लीजिए आपको s तक लेके आना है उसको, ठीक है। तो आप इसे टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कितनी है आपकी 0 और फाइनल कितनी है s। सो इनिशियल एंड फाइनल नोन है, वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे dw की, kx dx, के आउटसाइड आ गया, x टू दी पावर 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट रिप्लेस करिए, तो s स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। सो आपका फाइनली जो एक्सप्रेशन आया वो ये आ गया। तो ये जो वर्क डन आपने फाइंड किया, यही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और ये दोनों पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मैकेनिक्स के लिए, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इसमें काइनेटिक एनर्जी का फोर्स से रिलेटेड अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में अगर ये डायरेक्शन मैं फोर्स की ले लूँ और ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ले लूँ, तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपका ये प्लॉट होगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ है कि इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो KS के इक्वल हुआ जब आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट S हो गया था, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन अंडर जो एरिया होता है, ये एरिया आपका वर्क डन शो करता है। तो ये आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्वांटिटी हो जाएगी हाफ KS स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट शो करेगी एक्सिस, तो ये S हो गई, ये KS है तो ये भी KS हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आपका क्या था, वेरिएबल था डिस्प्लेसमेंट के साथ। और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिएगा, हुक्स ने क्या बताया था, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा सेम इसी के, बट डायरेक्शन अपोजिट थी। और जब F और S प्रोपोर्शनल हैं तो इनका ग्राफ कैसा मिला आपको, लीनियर मिला, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगें तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।